أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اس سے پہلے سورہ ابراہیم یہ آپ کے سامنے اس کا درس مختصر طور پر پیش کیا تھا. سورہ ابراہیم کے بعد میں یہ جو بھی آیتیں پڑھی گئی یہ سورہ ہجر کی آیتیں ہیں. سورہ ہجر کے اندر میں بھی یہ کچھ 3 آیتیں ہیں 80 نمبر کی اور 81 نمبر اور 82 نمبر کی. یہ 3 آیتیں ہیں. اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہجر رکھا گیا ہے. جیسے اگلی سورہ ابراہیم کے اندر میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا تھا. یہاں ہجر والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو آیت نمبر 80، 81 اور 82 کے اندر میں ان کا ذکر کیا گیا ہے ہجر والوں کا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا. دوسری بات، جس طریقے سے سورہ ابراہیم یہ مکیہ تھی، اسی طریقے سے سورہ ہجر یہ بھی مکی سورت ہے. ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی. جس طریقے سے سورہ ابراہیم کے اندر میں توحید کا اور رسالت کا اور انبیاء علیہ السلام کو ستانے کا اور نافرمانوں کا تذکرہ تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر میں انہی مضامین کو ذکر فرمایا ہے. یعنی توحید ہے اور رسالت ہے، انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو ماننے والے نہ ماننے والے وغیرہ کا تذکرہ اس سورت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے. سورۃ الحجر مکیۃ، سورہ ہجر یہ مکی ہے. پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا یہ مکی کہلاتا تھا، اور ہجرت کے بعد بھی جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے. تو یہ مکی صورتیں ہیں. مکی صورتوں کے اندر میں احکام کم نازل کیے گئے ہیں سوائے نماز کے. جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد میں نازل فرمائے. زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر میں ایمان کی، یقین کی اور آخرت کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، حساب کتاب، نشر اور قیامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر میں تذکرہ فرمایا ہے. جس طریقے سے سورہ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا تھا، اور شروع کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
अलिफ लाम रा से शुरू फरमाया था सूरह इब्राहिम को। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़-ज़ुलुमात। अब यहाँ सूरह हिज्र को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुरूफ़े मुक़त्तआत ही के ज़रिए से शुरू फरमाया है। वहाँ पर था अलिफ लाम रा, यहाँ पर भी है अलिफ लाम रा। सूरह इब्राहिम के शुरू के अंदर में बताया था कि हुरूफ़े मुक़त्तआत जहाँ कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतों के शुरू के अंदर में ज़िक्र फरमाए हैं, उसके बाद अक्सर सूरतों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का तज़किरा फरमाया है अलग अलग अल्फाज के ज़रिए से। जैसा कि सूरह इब्राहिम के अंदर में था किताबुन अंज़लनाहु इलैका, अलिफ लाम रा, इसकी मुराद तो अल्लाह ही जानते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये एक किताब है जिसको हमने आप पर उतारा या आपकी तरफ उतारा। यहाँ सूरह हिज्र के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम रा, इसकी मुराद तो अल्लाह ही बेहतर जाने। तिल्का आयातुल किताबी व कुरानिन मुबीन, वो किताब की आयतें और कुरान मुबीन की आयतें हैं। यहाँ पर भी हुरूफ़े मुक़त्तआत के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का तज़किरा फरमाया हुआ है। ये हिज्र कहाँ आया और उनकी तरफ या उन बस्ती वालों की तरफ किसको नबी बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, तो इसके अंदर में भी मुनासबत है। सूरह इब्राहिम, इसके अंदर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। मुल्क शाम की तरफ उनको हिजरत करने के लिए हुक्म दिया गया था। इराक़ के रहने वाले थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ वो हिजरत करके चले गए। वहाँ पर मुल्क शाम के अंदर में हज़रत सारा और हज़रत इसहाक, इनकी बस्ती वहाँ पर आबाद हुई। और यहाँ मक्का मुकर्रमा के अंदर में हाजिरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बस्ती आबाद हुई। इसके बाद में यूँ समझो कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों के बीच के अंदर में जो रास्ता है जिसको तरीक़ुल हिजरत कहा जाता है, जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई थी, सऊदी गवर्नमेंट ने उसी को हाईवे बना दिया हुआ है। 420 या 450 किलोमीटर का ये रास्ता है। मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ अगर आप आवें या मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जावें तो बहर के मदीना मुनव्वरा के करीब के अंदर में जो रास्ता हाईवे है, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आने की वक्त में दाहिनी जानिब के अंदर में एक रास्ता पड़ता है मदीना मुनव्वरा से बाहर। और अगर मक्का मुकर्रमा से आते हैं तो मदीना मुनव्वरा से कुछ पहले बाईं जानिब के अंदर में एक रास्ता पड़ता है, ये तबूक का रास्ता कहलाता है। गज़वे तबूक का जो तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस के अंदर जो बयान फरमाया है, तो वही रास्ता है तबूक वाला। ये तबूक वाला रास्ता फिर आगे जो है जॉर्डन, लबनान, फ़लस्तीन और सीरिया, जो आज मुल्क शाम जो है, मुल्क शाम के जो 4 टुकड़े कर दिए, सीरिया, लबनान, जॉर्डन और फ़लस्तीन, ये मुल्क शाम के 4 टुकड़े कर दिए, ये इलाका है। अब यूँ समझो कि इससे पहले सूरह इब्राहिम के अंदर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, फिर सूरह हिज्र के अंदर में हिज्र वालों का तज़किरा हुआ। मुल्क शाम के अंदर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते थे और उसके बाद मदीना मुनव्वरा की जानिब के अंदर में ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम और जो बस्ती थी जिसके ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया था, वो लोग वहाँ पर रहते थे। और इसके बाद मदीना मुनव्वरा की जानिब के अंदर में कौम समूद रहती थी, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी जगहों के अंदर में फरमाया हुआ है। वन्ना समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया, कौम समूद
फरिश्तों की चीख के ज़रिया से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। ये जो कौम समूद का जो इलाका है, उस कौम समूद के इलाके के अंदर में उनकी सबसे बड़ी बस्ती जो थी कौम समूद की, उस बस्ती का नाम था हिजरा। इसी का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर में बयान फरमाया। और इन लोगों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, यही है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिनसे उनकी बस्ती वालों ने मुआजिज़ा का मुतालबा किया था। और ये मुआजिज़ा तलब किया था कि ये जो पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर में से ऊँटनी निकले, गाभिन ऊँटनी निकले और बाहर आने के बाद में वो बच्चा जने। तो ये हिजर वालों ने, कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऊँटनी का मुतालबा किया था। फिर उन लोगों ने ऊँटनी के पाँव वगैरह काट डाले। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर में अज़ाब नाजिल फरमाया। रात के वक्त के अंदर में ये लोग सोए हुए थे और फरिश्ते ने आकर के चीख मारी और उसी वक्त के अंदर में उनकी कलेजे फट गई और दिल फट गए और मर गए। इनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। तो ये सूरह हिजर जो है, ये हिजर के रहने वाले हैं। ये कौम समूद है जिनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बना करके भेजा गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, इसकी मुराद अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह के अलावा इसकी मुराद को कोई जानता नहीं है। तिल का आयातुल किताबी, ये किताब की आयतें हैं। व कुरान मुबीन, और वाज़ेह कुरान की आयतें हैं। तिल का आयातुल किताब, अल किताब के ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला ने अलिफ लाम ज़िक्र फरमाया है। और आयत की इजाफत और निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अल किताब की तरफ फरमाई। तमाम मुफस्सिरीन का और मुहद्दिसीन का ये कहना है कि यहाँ किताब से मुराद कुरान पाक ही है। तिल का आयातुल किताबी व कुरान मुबीन। अगले अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें नाजिल फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील, और इसी तरीके से सहीफ़े यानी छोटी छोटी किताबें भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। यहाँ तिल का आयातुल किताब से मुराद कुरान पाक ही की आयतें हैं। व कुरान मुबीन, और कुरान मुबीन की आयतें हैं। कुरान का जो लफ्ज़ है ये काफ, रा और हमज़ा या अलिफ से बना हुआ है। क़रा यक़रअ से बना हुआ है। कुरान पाक की सबसे पहली आयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई गार हीरा के अंदर में, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली आयत थी। इक़रा, इक़रा का माना है पढ़ो, और क़रा यक़रअ का माना है पढ़ना। और कुरान ये मस्दर है, बार बार पढ़ना। कुरान को भी कुरान इसीलिए कहा जाता है कि इसको बार बार पढ़ा जाता है। अब आलमी एतबार से और दुनिया के एतबार से सूरज के निकलने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक का वक्त देखो, और अज़ानों का वक्त देखो, फिर उसके बाद में नमाज का वक्त देखो। और आजकल रमज़ान के महीने के अंदर में, जबकि पूरे आलम के अंदर में लोग रोज़े रखते हैं, रमज़ान की तरावी पढ़ते हैं, इसके वक्त को देखो तो कहीं ना कहीं पर जब नमाज का वक्त ख़त्म होता है तो अगली जगह के अंदर में नमाज का वक्त शुरू होता है। फिर वहाँ पर नमाज ख़त्म होती है और उससे आगे जो है फिर नमाज का वक्त शुरू होता है। 24 घंटे के अंदर में कहीं ना कहीं पर हर 10, 15, 20 मिनट के फासले के ऊपर में रूए ज़मीन पर अज़ानी दी जाती है, और रूए ज़मीन पर हर 10-15 मिनट के फासले के ऊपर में नमाज़ें पढ़ी जाती है।
اور رمضان کے مہینے کے اندر میں ہر 15-20 منٹ کے فاصلے کے اندر کہیں نہ کہیں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر میں پڑھا جاتا ہے اور تراویح کے اندر میں پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی شکل کے اندر میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 مرتبہ پڑھو اس کے بعد میں آدمی کا دل اکتا جاتا ہے۔ 4-5 مرتبہ کوئی ناول ہے یا کوئی قصہ کہانیاں کی کوئی اسٹوری کی کوئی کتاب ہے جس میں بہت دلچسپی ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے تو 3-4 مرتبہ پڑھو، اس کے بعد میں آدمی کا دل اکتا جاتا ہے، یہ تو بار بار پڑھ لیا ہم نے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے اور یہ معجزہ ہے کہ آدمی کا دل بھرتا نہیں ہے، اس لیے کہ چین اور سکون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی شکل کے اندر میں نازل فرمایا ہے، اس دین کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر میں نازل فرمائے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو گویا قرآن پاک کے بار بار پڑھنے کی وجہ سے آدمی کا دل اکتاتا نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور مہینے کے اندر میں تقریباً 30 یا 31 یا 32 قرآن پاک ان کے ختم ہوتے ہیں۔ روئے زمین کے اوپر میں کوئی بھی ہے دوسری زبان والا آرام کے ساتھ میں اس کو یاد کر لیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ ہمارے یہاں اگر گجراتی زبان کی کوئی چوپڑی ہے یا کوئی بک ہے 100 صفحے کی 200 صفحے کی، اگر کسی بچے کو دے دو منہ زبانیں یاد کرنے کے لیے نہیں یاد کر سکتا، اور یہ تقریباً 800-850 صفحہ کی جو کتاب ہے، اور ایسے بچوں کو دی جاتی ہے یاد کرنے کے لیے کہ جن کی مادری زبان قرآن عربی نہیں ہے، مادری زبان ان کی عربی نہیں ہے۔ عرب کے لوگ جن کی مادری زبان عربی ہے اگر وہ یوں یاد کر لے آسانی کے ساتھ تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن ایسے بچے کہ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے ان کو اگر یاد کرنے کے لیے دے دیا جائے تو 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر میں بچے جو ہے وہ منہ زبانی اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہے، اور یہ قرآن پاک کے آسمانی کتاب ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن پاک کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل اور نشانی ہے۔ وقرآن مبین، ایسا قرآن کہ جو بیان کرنے والا ہے اور وضاحت کرنے والا ہے، واضح کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات یا کچھ مرتبہ تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ جیسا کہ ابھی شروع کے اندر میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر میں توحید کا اور رسالت کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا اور رسالت کا، اللہ کی ذات پر اس کی صفات پر ایمان اور یقین لانے کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ بسا اوقات یا کبھی تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اس کی تفسیر کے اندر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مکہ کے مشرکین اور کفار ان کا جب بھی مقابلہ ہوتا تھا ایمان والوں کے ساتھ، جب بھی لڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کا جب غلبہ ہو جاتا تھا اور مسلمان جیت جاتے تھے اور کافر اور مکہ کے مشرکین ہار جاتے تھے، تو اس وقت میں یہ مکہ کے مشرکین اور کفار
तमन्ना करते थे लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम जो है वो मुसलमान होते, यानी अगर हम मुसलमान होते तो ये मुसलमानों की तरफ हम भी जीतते और ये काफिरों और मक्का के मुशरिकीन और कुफार का जो माल है जो मुसलमान जमा कर रहे हैं तो हम भी मुसलमान होने की हालत के अंदर में जमा करते, लौ कानू मुस्लिमीन। फिर उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी भी मर्तबा लड़ाइयाँ हुई और गज़वात हुए और जहाँ पर मुसलमानों ने जीत हासिल की, उन तमाम जगहों के अंदर में मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार तमन्ना करते थे कि लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम जो है वो मुसलमान होते, जहाँ कहीं भी मुसलमानों का गलबा हुआ। आखिर के अंदर में उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है कि दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में ये काफिरीन और मुशरिकीन मक्का ये तमन्ना करते रहे मुसलमान होने की, लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरने के वक्त के अंदर में जब ज़ाहिर के ऊपर में पर्दा पड़ गया और बातिन के ऊपर में जो पर्दा पड़ा हुआ है वो उठ गया, उस वक्त के अंदर में भी ईमान और इस्लाम लाने की उन्होंने तमन्ना की, लेकिन ऐसे वक्त का ईमान और इस्लाम मोतबर नहीं होता। फिर आखिर के अंदर में जन्नती लोग जन्नत के अंदर में चले जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर में चले जाएंगे। उस वक्त के अंदर में कुछ ईमान वाले भी होंगे जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के अंदर में उनको एक वक्त मुकर्रर के लिए डाला जाएगा और मुशरिक और काफिरीन और मुनकिरीन वगैरह भी जहन्नम के अंदर में होंगे। आपस के अंदर में इन सारे अज़ाब के होते हुए भी आपस के अंदर में बातें करेंगे। ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार उन मुसलमान से और ईमान वालों से जो किसी गुनाह की वजह से जहन्नम के अंदर में पहुंच चुके होंगे उनको शर्म दिलाएंगे, आर दिलाएंगे कि तुम तो ईमान का दावा करते थे, मुसलमान होने का दावा करते थे, तुम तो अल्लाह के ऊपर में अल्लाह के रसूल के ऊपर में ईमान लाते थे दुनिया के अंदर में, तो तुम क्यों यहाँ जहन्नम के अंदर में आ गए और तुम क्यों यहाँ अज़ाब के अंदर में मुब्तला हो गए। हमने तो अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के रसूलों का इनकार किया, अल्लाह की किताबों का इनकार किया, तो इसकी सज़ा के अंदर में हम तो जहन्नम के अंदर में आ गए। तुम क्यों अल्लाह के मानने के बावजूद और अल्लाह के रसूल को और अल्लाह की किताबों को मानने के बावजूद जहन्नम के अंदर में आ गए। ये बातें जहन्नमी लोग ईमान वाले जो जहन्नम के अंदर में होंगे उनसे करेंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे कि जहन्नम के अंदर में जितने भी ईमान वाले हैं उन तमाम ईमान वालों को निकाला जाए और उनको जन्नत के अंदर में दाखिल किया जाए। और इसके ऊपर में जहन्नम के अंदर में जो है ये जितने भी गुनहगार ईमान वाले होंगे उन तमाम को जहन्नम से निकाला जाएगा और एक ज़र्रा बराबर भी किसी के राय के दाने से भी कम दर्जे का भी अगर किसी के अंदर में ईमान होगा तो उसको जहन्नम से निकाला जाएगा। सिर्फ काफिरीन मुशरिकीन वगैरह जो है मुनकिरीन ये जहन्नम के अंदर में होंगे। और जब इन ईमान वालों को अल्लाह के हुक्म से जहन्नम से निकलकर जन्नत की तरफ उनको ले जाया जाएगा, उस वक्त के अंदर में ये काफिरीन तमन्ना करेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, कि उस वक्त के अंदर में ये काफिरीन तमन्ना करेंगे कि लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम भी मुसलमान होते, हम भी ईमान वाले होते। तो जिस तरीके से आज इन ईमान वालों को निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल किया गया तो हमको भी दाखिल किया जाता। उसके बाद में जहन्नम के अंदर में कोई काफिर के अलावा कोई ईमान वाला बाकी नहीं रहेगा। हदीस शरीफ के अंदर में एक मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान शान दो चुल्लू भरेंगे जन्नत के अंदर में से, और जितने भी ईमान वाले होंगे अपनी शान शान अल्लाह तबारक व तआला इनको निकाल करके जो है जन्नत के अंदर में दाखिल किया जाएगा। एक लतीफ़ा सुना दूँ जिसका ताल्लुक़ तफसीर के साथ में नहीं है, एक लतीफ़ा सुना दो। हमारे वालिद साहब कहा करते थे
ये हमारे अमीन साहब के जो वालिद साहब थे हज़रत हाजी अली कारबारी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारत के अंदर में कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को लाए थे। हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के मोहतमिम, दारुल देवबंद के मोहतमिम को लाए थे। जम्मू से मालूम ने गाड़ी वाड़ी के अंदर या गाड़ी छकड़े के अंदर में ले गए थे। तो हमारा तो बचपना था, इतना तो याद था कि कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह आए थे, मकतब पढ़ते थे। तो कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस बयान की थी कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान शान जहन्नम के अंदर में से 2 चुन्नी पड़ेंगे, जिनके अंदर में गुनहगार लोग जितने भी हैं वो आ जाएंगे। तो दीगाम वाले भी आए हुए थे। जलसे के बाद में जो है हाजी साहब ने कुछ चाय नाश्ते की भी दावत रखी थी। तो दीगाम वालों ने हाजी साहब से कहा कि तुम अव्वल मोल सब लाए, पहले खूबे में नहीं तो दूसरे खूबे में तो आज जाएंगे। अभी ताज्जुब होता है कि उस जमाने के अंदर में दारुल देवबंद की मोहतमिम को सारद लाए थे कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को। रब्बना यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफा यअलमून। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ईमान लाते नहीं, और ज़रहुम उनको छोड़ दो, याकुलू खाते पीते रहें, वयतमत्तउ और फ़ायदा उठाते रहें, वयुल्हिहिमुल अमलु और उनको उम्मीदें और तमन्नाएं गफलत के अंदर में डाल दें। फसौफ यअलमून अनकरीब वो लोग जान लेंगे, मरेंगे। मरने के बाद में जब आँखों के सामने सारा मंजर आएगा उस वक्त के अंदर में वो जानेंगे समझेंगे, लेकिन उस वक्त के अंदर में ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुन मालूम। वमा अहलकना मिन क़रयतिन, नहीं हलाक किया हमने किसी भी बस्ती वालों को मगर वलहा किताबुन मालूम, उनके लिए एक लिखा हुआ वक्त मुतय्यन था, मुकर्रर था। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा, किसी भी उम्मत को उसका जो वक्त लिखा जाता है हलाकत का और अजाब देने का, तो उससे वो आगे नहीं हो सकती, सबकत नहीं कर सकती। वमा यस्ताखिरून, और उस वक्त मुकर्रर से वो पीछे नहीं हट सकती। अजाब का जो वक्त लिख दिया गया है, अजाब अपने वक्त मुकर्रर पर आकर के रहेगा, न एक सेकंड आगे पहले आएगा और न एक सेकंड बाद में आएगा। वक़ालू, तो अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयतों के अंदर में अगली उम्मतों को हलाक और बर्बाद करने की किस्से बयान करने के बाद और उनके हालात को बयान करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली देते हैं कि जिस तरीके से अगली उम्मतों ने अगले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों का इनकार किया और अगली किताबों का इनकार किया, बातों को नहीं माना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया और उनके ऊपर में अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल फरमाया। ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार भी अगर ईमान नहीं लाते और जुल्म करते रहते हैं तो इनके लिए भी एक हलाकत का और बर्बादी का और अज़ाब के नाजिल होने का एक वक्त मुकर्रर है, ये मुतय्यन है वक्त। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर में इसका तज़किरा फरमाया, वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुन मालूम, हमने किसी भी बस्ती वालों को हलाक नहीं किया मगर उनके हलाक के लिए एक लिखा हुआ वक्त मुतय्यन था। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा, कोई भी उम्मत अपने वक्त मुकर्रर से आगे नहीं जा सकती। वमा यस्ताखिरून, और पीछे जा नहीं सकती। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। वक़ालू, और कहने लगे, इससे मुराद मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार है। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के अंदर में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कभी जादूगर कहते, कभी नजूमी कहते, कभी जोशी कहते
اور کبھی پاگل کہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ان آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ مکہ کے مشرکین اور کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت اور تبلیغ کی بات کو رکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ وقالو، مکہ کے مشرکین اور کفار کہنے لگے، یا ایھا الذی، یہ وہ آدمی جو کہ الذی نزل علیہ الذکر، جس کے اوپر بھی ذکر نازل کیا گیا۔ ذکر کی بات ابھی بتلائی کہ ذکر سے مراد جو ہے قرآن پاک ہے، جیسا کہ آگے ہے نیچے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو گویا مکہ کے مشرکین اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ وہ آدمی جس کے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا، انک لمجنون، بے شک تو پاگل ہے۔ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، پھر لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ بے شک تو دیوانہ ہی ہے، مجنون ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، دعوت اور تبلیغ کے ذریعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین اور کفار کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کے کتاب کی طرف دعوت دیتے تھے، جنت کی طرف دعوت دیتے تھے، خیر خواہی چاہتے تھے لوگوں کی، دنیا والوں کی، تمام انسانوں کی۔ اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ ایک تو مکہ کے مشرکین اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہا، اس کے بعد میں مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر واقعتاً تم سچے نبی ہو تو آسمان پر سے فرشتے اتارو، تم پر فرشتے اترے اور فرشتے اتر کر کے یہ کہے کہ یہ نبی ہے، اور فرشتے اتر کر یہ کہے کہ ان کے اوپر میں جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے یہ لوح محفوظ سے جبرائیل کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد کے اوپر میں اتارا ہے، نازل کیا ہوا ہے۔ یہ مطالبے تھے مکہ کے مشرکین اور کفار کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا دوسری بات اور بھی ہے، دوسری جگہوں کے اندر میں بھی مکہ کے مشرکین اور کفار نے مطالبے کیے تھے کہ مکہ کے اندر میں جو ہے چشمے پھوٹ پڑے اور وہاں پر زمین ہریالی بن جائے اور وہاں سے پھل پیدا ہو جائے اور بھی چشمے پھوٹ پڑے۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتے بھی نازل ہوں اور فرشتے نازل ہو کر کے ہر آدمی کے پاس جا کر کے اس کو دعوت دے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی ہے، تو ہم ایمان لائیں اور اسلام کو قبول کریں۔ ان مطالبات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ ان کے مطالبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے سارے مطالبات اگر پورے کر دیے جائیں گے پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، مکہ کے مشرکین اور کفار نے کہا کہ کیوں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کے نہیں آتا، ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنے دعوے کے اندر میں سچا ہے۔ دعوے کے اندر میں سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ نے مجھ پر قرآن پاک نازل کیا ہوا ہے، یہ تو اپنے دعوے کے اندر اگر تو سچا ہے تو فرشتوں کو لے آؤ، آسمان پر سے فرشتے اترے اور فرشتے اتر کر کے تیری صداقت کی گواہی دے کہ میں ان کو مانو یہ اللہ کی رسول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وقت کے اندر میں فرشتے نہیں اتارتے، فرشتوں کو جب اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت کے اندر میں فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور جب فرشتے اتر جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کو آگے بیان فرمایا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو نہیں نازل فرماتے ہیں مگر عذاب کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حق کا معنی یہاں پر عذاب کا ہے،
मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि, हम फरिश्तों को नहीं उतारते मगर अज़ाब के साथ। वमा कानू इज़म मुंज़रीन, और जिस वक्त के अंदर में फरिश्ते अज़ाब को लेकर के उतर पड़ते हैं तो उस वक्त के अंदर में उनको मोहलत नहीं दी जाती। वमा कानू इज़म मुंज़रीन, फरिश्ते अगर उतरेंगे तो अज़ाब को लेकर के उतरेंगे, उस वक्त के अंदर में किसी को भी अल्लाह की तरफ से मोहलत नहीं दी जाएगी। इस पर एक बात और भी उलमा ने लिखी है कि सिर्फ तर्जुमा देख करके कुरान शरीफ समझ में नहीं आ सकता। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि, अगर हम तर्जुमा करेंगे तो हक़ का तर्जुमा हक़ का होता है, हक़ यानी सच्ची बात, सही बात, लेकिन हक़ से मुराद यहाँ पर अज़ाब है। बिल हक़्क़ि यानी बिल अज़ाबी, कि हम फरिश्तों को नहीं उतारते मगर अज़ाब के साथ। वमा कानू इज़म मुंज़रीन, और उस वक्त के अंदर में जब फरिश्ते अज़ाब को लेकर के उतरेंगे उस वक्त के अंदर में उनको डील और उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। इसके बाद में एक आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कल इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे और आगे बढ़ेंगे।